जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का परीक्षा वाटिका एजुकेशन में। आज के वीडियो में बीपीएससी एडीओ पेपर 1 का तीसरा प्रैक्टिस सेट कवर करेंगे। इससे पहले 2 टेस्ट हो चुका है, उससे भी पहले 10 टेस्ट जो है किरण पब्लिकेशन का पेपर 1 का करवाया गया था, जो कि इसी यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएगा। इस टेस्ट को स्टार्ट करें उससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि नोटिफिकेशन जितने भी होंगे सबसे पहले आपको मिल जाएंगे। ठीक है, और इसका पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो परीक्षा वाटिका एजुकेशन आप लोग सर्च कर लीजिए। मैं यहाँ लिख देता हूँ, क्या सर्च करना है, परीक्षा वाटिका। ये टेलीग्राम चैनल है, या फिर इस नंबर पर आप लोग मैसेज करके पीडीएफ ले सकते हो। ठीक है, दोनों में से कहीं भी आप लोग मैसेज करके पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टेस्ट। जैसा कि शुरू से ही आप लोग जानते आ रहे हैं कि एडीओ के पहले पेपर में 2 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट अंग्रेजी का, जिससे 30 प्रश्न पूछे जाते हैं, और दूसरे पार्ट में हिंदी से 70 प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए, कॉम्प्रिहेंशन दिया गया है, रीड द पेसेज केयरफुली एंड चूज द बेस्ट आंसर टू ईच क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव्स। पढ़ते हैं इसको। डूइंग एन इंटर्नशिप एट द यूनिवर्सिटी ऑफ लिली इन फ्रांस, आई ऑलमोस्ट ऑलवेज फाउंड माई सेल्फ स्टक वेन एवर आई हैड टू स्पीक टू नॉन इंडियंस अबाउट इंडिया और anything Indian. This was more because of the subtle differences in the way the French understood India in comparison to what I thought was Indian. For instance, when I or any Indian for that matter say Hindi in an Indian language, what it means is that it is one of the languages widely spoken of India. In India, this need not to be similar to the understanding that the French would have when they hear of Hindi as an Indian language, because for them Hindi then becomes the only language spoken in India. This is the natural interference that the French, Germans, Italians and many other European nationals would tend to make, because that is generally how it is in their own respective countries. The risk of such inappropriate generalizations made about Indian is not restricted to language alone, but also for India's landscape, cuisines, movies, music, climate, economic development, and even political ideologies. The magnitude of diversity of an European country can be easily compared to that of one of the Indian state, isn't it? Can they imagine that India is one country whose diversity can equate to that of entire European continent? The onus is upon us to go ahead and clarify the nuances in Indians while we converse. But why should one do so? How does it even matter to clarify? ठीक है, ये पूरा हमारा जो पैसेज था इसको पढ़ लिया। अब इसके आधार पे आपको इसका क्वेश्चन आंसर करना है। पहला प्रश्न है, व्हाई डू सम फ्रेंच पीपल थिंक दैट हिंदी इज द ओनली इंडियन लैंग्वेज? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1, ऑप्शन ए, बिकॉज दैट इज द वे इन ऑलमोस्ट यूरोपियन कंट्रीज। ठीक है, पहला विकल्प इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, द राइटर वॉज वर्किंग एट एन यूनिवर्सिटी इन विच कंट्री? Correct answer is option A, France. According to the passage, the writer was working at the university in France. Okay. Next question, what wrong with respect to India are the Europeans responsible for? According to the passage, the wrong with respect to India in the Europeans are responsible for their inappropriate generalization. Option C is the correct answer. Their inappropriate generalizations. ठीक है, बढ़ते आगे। Question number 4, the writer compares diversity of an European country to the diversity of dash. The correct answer is option B, one Indian state. Next question, according to the writer, the responsibility of the explaining the facts about India to Europeans rest with. The correct answer is option B, Indians. Okay. Next question, select the most appropriate option to substitute the underlined segment in the given sentence. If there is no need to substitute it, select no substitution. इस तरह के प्रश्न किरण पब्लिकेशन में हम लोगों ने किया था और पिछले 2 टेस्ट में कर चुके हैं। तो टोटल 10 उधर और 2 इधर, 12 टेस्ट हो चुके हैं। इस तरह के प्रश्न में आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। चलिए स्टेटमेंट पढ़िए। आई विश आई वर लिसनिंग टू माई पेरेंट्स, अंडरलाइंड है वर लिसनिंग। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर क्या है, हैड लिसेंट विल बी यूज्ड बिकॉज पास्ट टेंस इन यूज्ड,
I wish. What? I wish to express the regret from the past. The correct answer is option B, had listened. is ये जो है ना, यहाँ पर सबमिशन की जो सब्स्टिट्यूशन है यहाँ पर रिक्वायर्ड है क्या, हैड लिसेंड का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। चलिए पढ़िए यहाँ पर सेंटेंस, दीज एप्पल्स डैश द आर एस 100 per kg, डू यू थिंक दे आर एक्सपेंसिव। तो कॉस्ट विल बी यूज बिकॉज विद these apples plural noun. What? Plural noun. The plural verb cost will be used. The right answer is option A. ठीक, cost is plural verb. ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर, इफ देयर इज नो एरर सेलेक्ट नो एरर। पढ़िए सेंटेंस, वी वॉच द वर्कमैन टू रिपेयर द टाइल्स ऑफ द किचन। यहाँ पर कोई एरर है या नहीं, तो रिपेयरिंग विल बी यूज बिकॉज जो जेरंड है यहाँ पर क्या, गेरंड, इसके साथ वर्ब 1 प्लस ING यूज होगा, तो ये वर्ब होगा यहाँ पर। तो करेक्ट आंसर इस जगह पे क्या हो जाएगा, ये होना चाहिए टू रिपेयर द टाइल्स, विकल्प सी, ऑप्शन सी। यहाँ पर ये एरर हो जाएगा। तो एरर क्या है, तो वॉच प्लस समबडी डूइंग समथिंग, ये होता है इसका पूरा एक सेंटेंस फॉर्म बनेगा। तो वॉच के बाद समबडी और डूइंग और समथिंग ING का यूज होगा। क्लियर है, तो टू रिपेयर द टाइल्स ये एरर है यहाँ पर। नेक्स्ट, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट विल इंप्रूव द अंडरलाइंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस इन केस नो इंप्रूवमेंट इज नो नीडेड, सेलेक्ट नो इंप्रूवमेंट। सेंटेंस ये है, माई फादर आई विशिंग इज विशिंग मी टू गिव ऑल माई टाइम टू स्टडीज नाउ। यहाँ पर इज विशिंग अंडरलाइंड है, यहाँ पर इंप्रूव की जरूरत है या नहीं देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो है ना विशेष का यूज होना चाहिए, क्या चीज़, विशेष का। तो यहाँ पर इज विशिंग जो है यहाँ पर गलत दिया गया, तो क्या हो, विशेष का यूज होना चाहिए, विकल्प सी सही जवाब हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर। सेंटेंस पढ़िए, द चार्ट पेपर्स वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन ऑल द चिल्ड्रेंस। करेक्ट आंसर क्या होगा, यहाँ पर जो है चिल्ड्रेन के बाद प्लूरल नंबर और चाइल्ड जो है इसके बाद जो इसके बीच रिप्लेस्ड एमंग का यूज होगा। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा एक से अधिक हो जाएगा। ठीक है, द चिल्ड्रेंस बिटवीन ऑल ये दोनों हो जाएगा, तो एक से अधिक है, मोर देन वन ऑफ द एबव। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट, यहाँ पे क्या कहा जा रहा, सब्स्टिट्यूशन कहा जा रहा, नो इंप्रूवमेंट की जरूरत है, पूरा नहीं पढ़ना उतना। द दिल्ली बिरला इंटरनेशनल स्कूल एल्यूमिनस अकपी लीडिंग पोजीशन एंड डिफरेंट एरियाज ऑफ प्रोफेशन एंड सर्विस। यहाँ पर अंडरलाइन क्या है, एल्यूमिनस अकपी, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा एलमनी अकपी होगा, एलमनी अकपी। ठीक है, विकल्प बी इसका सही जवाब होगा, क्योंकि ये प्लूरल नाउन है, एलमनी क्या है, ये प्लूरल नाउन का यूज होगा। क्लियर है, नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर। चलिए पढ़िए, आई विल कम टू योर्स हाउस इन द इवनिंग टू प्ले चेस। करेक्ट आंसर, आई विल कम टू योर्स हाउस, आई विल कम टू योर्स हाउस। ये जो है ना एरर दिया गया है यहाँ पर, ये एरर है। या जो योर जो है ना, क्या योर, योर पॉसेसिव एडजेक्टिव है, और योर्स जो हो जाता है, योर्स ये क्या हो जाएगा, ये पॉसेसिव प्रोनाउन हो जाता है। इसलिए करेक्ट सेंटेंस क्या बनेगा, आई विल कम टू योर हाउस, आई विल कम टू योर हाउस, एस का यूज नहीं होगा। समझ रहे हैं ना, ये यहाँ पर इस कारण से ये एरर हो गया। सेलेक्ट द ऑप्शंस that will improve the underlined part of the sentence in case no improvement is needed, select no improvement। पढ़िए पूरा, but what of the young people whom are part, ये यहाँ से underlined है, whom are part of the cricket crowds, some of who are presumably born in England। ये पूरा underlined part है हमारा। ठीक है, तो who will be used in place of whom and whom will be used in the place of who, because who is used to subjective case while whom is used in objective case। समझ रहे हैं यहाँ पर, तो राइट आंसर क्या होगा, who are part of the cricket crowds, some of whom are presumably born in England। ये पार्ट जो है यहाँ पर इंप्रूव की जरूरत है, who के जगह whom का यूज होगा और whom के जगह who का यूज होगा। Next question, fill in the blank with the most appropriate option word। The man dash book your reading in my father। Correct answer is option B, whose। Whose will be suitable because possessive case, whose to denote ownership is needed here,
correct sentence, the man whose book you are reading is my father. Okay, next question, select the most appropriate synonym of the given word. colloquial, कोलाकल का जो होगा ये जो है जो कन्वर्सेशनल कम्युनिकेटिव, ये सिनोनिम होता है इसका, और कन्वर्सेशनल में जो टॉकेटिव इस टाइप का. द मीनिंग ऑफ द अदर ऑप्शन लेक्सिकल, डिक्शनरी, एटमोलॉजिकल. ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, कन्वर्सेशनल. ओके, कन्वर्सेशनल इज द राइट आंसर, और कोलोकियल का ये सिनोनिम होगा क्या, कन्वर्सेशनल. ओके, बढ़ते आगे. सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड. लैकुना, लैकुना इसका क्या राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी, हियाटस. ओके, नेक्स्ट, द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन डिवाइडेड इनटू पार्ट्स, वन ऑफ them may contain an error. Select the part that contains the error from the given option. If you don't find any error, mark no error as your answer. ये तीन पार्ट में है. पहले पार्ट में he is, दूसरे पार्ट में struggling to make, तीसरे पार्ट में honest living. यहाँ पर एरर कौन सा पार्ट है, तो एरर जो है ना, an honest living जो है, an honest living is appropriate because indefinite article an is used before the vowel sound. honest इस जगह पर एक की जगह एन का यूज होना चाहिए, ऑनेस्ट. ठीक है, ये वॉवेल साउंड हो जाता. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, ए ऑनेस्ट लिविंग. ये गलत दिया गया, क्या होना चाहिए, एन ऑनेस्ट लिविंग. दैट इज करेक्ट. ओके, नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस विच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर. द सेंटेंस इज इफ इंडिया विल विन दिस मैच दे विल विन द सीरीज. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, इफ इंडिया विल विन दिस मैच. If India will win this match would be appropriate because will और shall जो models है is not used in a clause. इसका जो आप लोग फॉर्म बनाएंगे, if प्लस सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस प्लस यहाँ पर कोई भी पार्ट आएगा प्लस सिंपल फ्यूचर का बाद में यूज होगा. ठीक है, इसलिए ये पार्ट जो है ना एरर है. ठीक है, इसका सही क्या बनेगा, इफ इंडिया विंस दिस मैच, इफ इंडिया wins this match. ठीक है, they will win the series, they will win the series. इस तरह से पूरा राइट सेंटेंस बन सकता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द वर्ड दैट इज अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड. क्यूपिडिटी, इसका क्या बोला जा रहा है, अपोजिट मीनिंग यानी एंटोनिम पूछा जा रहा है. ये हो जाएगा लैगिज, लैगिज, इसको लैगिज पढ़ा जाएगा. डोनेशन या जेनरोसिटी, इसका ये सिनोनिम होगा. क्या क्या इसका सिनोनिम पूछा जाए तो डोनेशन, दान के संदर्भ में होता है. नेक्स्ट, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड. ऑफ बीट. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन वन, कॉन्वेंशनल, कॉन्वेंशनल या ट्रेडिशनल, इसी के संदर्भ में होता है. इसका सिनोनिम ट्रेडिशनल. The following sentence has been split into 4 segments. Identify the segment that contains a grammatical error. 3 पार्ट. द रिवर फ्लॉड बिसाइड द हिलॉक इन योर विलेज. 4 पार्ट में दिया गया. यहाँ पर कौन सा यहाँ पर एरर दिया गया है, कौन सा एरर होगा बताइए आप लोग. यहाँ पर सेंटेंस दिया गया है कोई भी नहीं, द रिवर फ्लॉड बिसाइड द हिलॉक इन योर विलेज. पूरा का पूरा सही है, एरर है ही नहीं यहाँ पर. राइट आंसर क्या करेंगे हम लोग, ऑप्शन ही लगा देंगे, नन ऑफ द एबव. नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट विल इंप्रूव द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस. इन केस नो इंप्रूवमेंट इज नीडेड सेलेक्ट नो इंप्रूवमेंट. पढ़िए पूरा. इट इंक्लूड्स, यहाँ पर पूरा अंडरलाइंड है. डिसीजन ऑफ द स्टेटस ऑफ ब्रिटिश एंड यूरोपियन यूनियन माइग्रेंट्स रेसिडेंट इन देयर रिस्पेक्टिव टेरिटरीज. इसका राइट आंसर क्या, डिसीजन ऑन द स्टेटस. ये जो है ना यहाँ पर एरर है, यहाँ पर इंप्रूव की जरूरत है. ऑप्शन बी इज द करेक्ट. ओके, डिसीजन ऑन द स्टेटस, यहाँ पर जो है ना ये करेक्ट इसको करेक्ट किया जाए तो डिसीजन ऑन द स्टेटस होगा. ठीक है, चलिए आगे बढ़े. अगर आप में से किसी भी बच्चे को बीपीएससी एडीओ जितना भी टेस्ट सीरीज करवाया जा रहा है, किसी का पीडीएफ चाहिए तो परीक्षा वाटिका टेलीग्राम चैनल पर ले सकते हैं, या फिर इस नंबर पर आप लोग व्हाट्सअप करके पीडीएफ का डिमांड कर सकते हैं, आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा. चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ. आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर. पढ़िए पूरा सेंटेंस. राम कैन नॉट विदड्रॉ ऑल हिज मनी अनलेस हिज डजंट गिव अ प्रायर नोटिस. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, अनलेस ही डज नॉट गिव.
यहाँ पर कंजक्शन है, इट सेल्फ इन ए नेगेटिव वर्ड, सो नॉट कैन नॉट बी यूज्ड विथ अनलेस। ओके, द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। यहाँ पर क्या होगा, लेट अस नो डैश यू चेंज योर माइंड। करेक्ट आंसर इज इन केस। लेट अस नो इन केस यू चेंज योर माइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी एपोलॉजी। ठीक है, ये जो है ना इनकरेक्ट है, एक्सट्रीमली सॉरी, एपोलॉजी जो है ना ये सही दिया गया है ना, नहीं गलत है। एपोलॉजी जो होगा ना, एपोलॉजी इसी तरह लिखाता है। ठीक है, और यहाँ पर जो है एक्स्ट्रावर्ट नहीं होता है, एक्सट्रोवर्ट होता है, एक्सट्रोवर्ट। ठीक है, एक्सट्रोवर्ट। लग्यूब्रियस ये क्या होता है, ये ल्यूगुब्रियस होता है। ठीक है, ल्यूगुब्रियस यानी तो मॉर्नफुल होता है, मॉर्नफुल होता है। तो यहाँ पर ये दोनों ऑप्शन जो है गलत दिया गया है। तो राइट आंसर क्या होगा, वन ऑफ द एबव, दो गलत था ना, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द फॉलोइंग सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस। बाय होम वेयर यू टॉट इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, हु टॉट यू इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन। ये जो है ना प्लूरल वर्ब जो है क्या है, बाय होम है। बाय होम क्या है, प्लूरल वर्ब है। और एक्टिव वॉइस की बात कही जाए तो हु के बाद वर्ब टू और ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड का यूज होगा। तो यहाँ पर करेक्ट एक्टिव फॉर्म अगर बात कही जाए तो हु टॉट यू इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, select and the option that express the given sentence in direct speech. The ticket collector asked the passengers where their tickets were. Correct answer is option C. The ticket collector said to the passengers, where are your tickets? Next question, select the most appropriate meaning of the given idiom. ये idiom दिया गया, to bark up the wrong tree. To bark up the wrong tree. Correct answer, ये idiom है ना, means to be wrong about the reason for something. Option A is the right answer. Very easy. Next question, select the option that can be used as a one word substitute for the given group of words, the sound made by bees. The right answer is option C, buzz. That calls words. His क्या होता है, to make a sound to show that you are angry or do not like something. Coo, that means to make a soft low sound like bird. Moo, यहाँ पर इसी तरह एक moo होता है, तो moo the sound that cow. ओके, चल अगला प्रश्न है और पहले पार्ट इंग्लिश का आखिरी प्रश्न। सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ द गिवन वर्ड। ए गार्डन विथ फ्रूट ट्रीज। करेक्ट आंसर इज ऑर्किड। ऑर्किड, ठीक है, ये राइट आंसर होगा। विनयार्ड, a form of grape vines where wine grapes are produced, जहाँ पर शराब बनता है। ग्रो what, तो ग्रो a small growth of trees without underbrush। नर्सरी इसी तरह एक होता है, नर्सरी पूछा जाता है इस तरह के प्रश्न। नर्सरी अ प्लेस वेयर यंग प्लांट्स आर ग्रोन एंड सोल्ड, जहाँ पर छोटे पौधे तैयार किए जाते हैं और बेचे जाते हैं, उसको नर्सरी कहा जाता है। ठीक है, 30 प्रश्न अंग्रेजी से थे। अब दूसरे पार्ट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं जिसमें 70 प्रश्न हिंदी के कवर करेंगे। कितने, कुल 70 क्वेश्चन हिंदी के इसमें कवर करने वाले हम लोग। चलिए, कितने, 70 प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 31 और हिंदी का पहला प्रश्न, उल्लंघन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। करेक्ट आंसर उत्जोर-लंघन। मात्रानंद का संधि विच्छेद क्या होगा, मात्र आनंद, तो ये होगा मातृ प्लस आनंद, ऑप्शन ए। इस तरह के प्रश्न तो आप लोग को 10 टेस्ट में किएगा, और या आ के बाद ई या ई आए तो दोनों मिलकर ए हो जाते हैं, तो स्वर संधि कहलाती है। तो कौन सी स्वर संधि कहलाएगी, इस स्वर संधि कौन सा होगा, तो ये जो हो जाएगा ये हो जाएगा गुण स्वर संधि। ठीक है, गुण स्वर संधि। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे देव प्लस इंद्र। ठीक है, यहाँ पर क्या है, अ है, यहाँ पर क्या है, ई है, तो क्या हो जा रहा है, देवेंद्र। देवेंद्र, तो ये ए बन जा रहा है, तो इसी तरह का जान ए हो जाता है, अ के बाद ई आए तो। एग्जाम्पल समझ गए आप लोग। जानने की इच्छा रखने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा, तो ये हो जाता है जिज्ञासु, विकल्प बी।
कृति का अर्थ रचना होता है, परंतु इसके समरूपी शब्द कृति का अर्थ होगा। ये दीर्घ की ई का मात्रा है, इसका अर्थ क्या होगा? इस कृति का अर्थ होगा रचनाकार, जो किसी चीज़ का कीर्ति करता है, रचना करता है। अली अली शब्द युग्म का सही अर्थ है, इस अली और इस अली का। तो लहर्षिकार मतलब भौरा होता है, लौदीर्घिकार मतलब सखी होता है। भौरा और सखी, लहर्षि वाला भौरा, लौदीर्घिकार वाला सखी होता है। ठीक है। कंधा हिस्सा, तो इसका अगर कहे तो कंधा जो होता है, इसको मैं यहाँ पर इरेज कर लूँ ताकि आपको सही से बता सकूँ। ये कंधा हिस्सा जो है ना, तो कंधा, ये कंधा कैसा वाला कंधा होता है? ये अंश वाला होता है, सॉरी ये होता है अंश, ये वाला अंश, और हिस्सा यानी अंश, इसका मतलब कंधा हिस्सा अंश का ही है। दोनों अंश दिखने में सेम मतलब अलग अलग है। तालब सौ और मुदत सौ का है, दंत सौ का फर्क है। दमन दामन, ठीक है, दमन दामन है। तो दमन मतलब होता है दबाना, किसी चीज़ को दबाना, जैसे दुश्मन होता है उसका दमन कर दो। दामन मतलब क्या होता है? दामन का मतलब क्या होता है? इस दमन का मतलब दबाना हो गया, और दामन का मतलब आप लोग बताइए क्या होगा? तो ये होता है छोर, मतलब जैसे एक रस्सी है, इस चीज़ का दामन, या रिश्ते का दामन। ये दामन जो है छोर से ज़्यादा अप्रोप्रिएट हो जाएगा, रिश्ते का दामन, कि छूटना नहीं है रिश्ता, इस टाइप के संदर्भ में। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अब चंचरीक शब्द का अर्थ क्या होगा? इसका अर्थ हो जाएगा भौड़ा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा शब्द का अनेकार्थ है? करेक्ट आंसर अर्क का। विप्र शब्द का समानार्थी शब्द डैश है, कौन सा होगा? विप्र का समानार्थी हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा ब्राह्मण। ओके, ब्राह्मण। निम्नलिखित में से समुद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है, नहीं है पूछा जा रहा है, कौन सा नहीं होगा समुद्र का पर्यायवाची? तो जलधि जो है, जलनिधि, जलधाम, सारे के सारे तो पर्यायवाची है, नहीं मतलब कोई नहीं, कोई भी ऑप्शन नहीं देगा, सारे के सारे जो जितने भी दिए गए समुद्र के पर्यायवाची शब्द हैं। नेक्स्ट, क्रोध शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? क्रोध, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका अमर्ष। ठीक है, अमर्ष हो जाएगा क्रोध का। और संताप का, संताप का क्या होगा? तो ये होता है दुख का पर्याय होता है, किसका? दुख का। संताप यानी दुख से मिलता जुलता है। वैमनस्य मतलब शत्रुता, शत्रुता करना या शत्रुता, इसका पर्यायवाची। अमर्ष का क्रोध हो गया। ठीक है, आगे बढ़े। सुलभ शब्द का विलोम क्या होगा? तो सुलभ का दुर्लभ हो जाएगा, वेरी इजी। ठीक। अलभ्य का, अलभ्य मतलब क्या होता है? जिसे प्राप्त ना किया जा सके, क्लियर। दुष्प्राप्य क्या होता है? जिसे कठिनाई से प्राप्त किया जा सकता है। इसी तरह एक वर्ड होता है दुर्दम्य, एन मौके पर याद भी आ जाता है मुझे भी, मतलब होता है जिसे कठिनाई से दबाया जा सके, उसको दुर्दम्य कहा जाता है। इनमें से कौन सा शब्द शुक्ल का विलोम है? शुक्ल का विलोम होगा कृष्ण, जैसे शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष। काला का विलोम क्या होगा? और असित का विलोम क्या होगा बताइए? असित का असंगत, काला का क्या होगा? सफेद। चलिए, मितव्यय का विलोम डैश होगा? मितव्यय का, मितव्यय का विलोम होता है अपव्यय, अपव्यय होगा, विकल्प ए सही जवाब हो गया। और जैसे कि कृपण है, तो कृपण जो मतलब होता है दानी या उदार का विलोम है, किसका? दानी या उदार का विलोम है कृपण। अल्पव्यय, अल्पव्यय मतलब ये क्या, किसका विलोम होगा? बहुव्यय का, बहुत खर्च करने वाला, कम खर्च करने वाला। अर्चना में कौन सा प्रत्यय है? अर्चना में प्रत्यय पूछा जा रहा है, बहुत सारे क्वेश्चन किए हो आप लोग, बताओ अब कौन सा होगा अर्चना में? कौन सा? अर्च प्लस अना, प्रत्यय कौन सा हुआ? अना प्रत्यय, विकल्प बी। और अना प्रत्यय से बनने वाले और शब्द की बात कही जाए तो एग्जाम्पल के लिए जैसे योजना ले लीजिए, इसमें भी क्या है? अना प्रत्यय है। और जैसे कि वंदना हो जाएगा, इस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे तो अना प्रत्यय होगा। प्रत्युत्पन्न शब्द में कौन सा उपसर्ग है? प्रत्युत्पन्न में कौन सा होगा? तो प्रति उपसर्ग हो जाएगा, जो पहले लग के अर्थ बदल देता है, पता है आपको परिभाषा। चलिए आगे बढ़े। अत्यंत में कौन सा उपसर्ग है? किसमें? अत्यंत में। करेक्ट आंसर अति उपसर्ग। दिए गए शब्द में एक शब्द तत्सम है, जिसे चिन्हित कीजिए। कौन सा शब्द तत्सम है इसमें से? ये हो जाएगा दिवस या अर्ध। अर्ध और दिवस दोनों तत्सम है। और तत्सम का रूप जो होता है, जैसे कि कुआं का कूप हो जाता है, तो कुआं क्या होगा? तद्भव होता है, उसी तरह कूप तत्सम होगा। इसी तरह दिन और दिवस है, ठीक है। कुआं का तत्सम क्या होगा? कूप,
कूप होता है, अगर इस ऑप्शन में दिया हुआ तो ये दोनों तीनों हो जाता। ऐसे भी एक से अधिक है, दो है ना, अर्ध और दिवस दोनों है। विकल्प डी राइट आंसर है, एक से अधिक। निम्न में से कौन सा शब्द देशज है? देशज शब्द कौन सा होगा? ये हो जाएगा कटोरा, कटोरा। अंगोछा किसका तद्भव शब्द है? अंगोछा जो है ये तद्भव हो जाएगा जिसका जैसे तत्सम शब्द होता है अंग प्रौछा, अंग प्रौछा दिया गया ना, ऑप्शन ए राइट आंसर हो गया इसका। निम्न में योग रूढ़ शब्द है, योग रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्द क्या होते हैं? तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि वे शब्द जो यौगिक तो होते हैं परंतु जिनका अर्थ रूढ़ यानी विशेष अर्थ हो जाता है, अर्थात ये समान अर्थ ना प्रकट करके किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, क्या कहलाते हैं? योग रूढ़ कहलाते हैं। जैसे जलज मतलब जल में उत्पन्न होने वाला क्या होता है? कमल होता है। तो जलज के जगह कमल बोल दीजिए, एक अलग शब्द प्रयुक्त हो रहा है इस तरह से, तो जलज यहाँ पर योग रूढ़ शब्द है। ठीक है, उससे अच्छा तो आप हैं, कौन सा कारक है इसमें? इसमें हो जाएगा अपादान कारक। ठीक है, से अपादान से यहाँ पर मार्क है ना। निम्नलिखित में से कर्ता कारक वाला वाक्य छांटिए, ये हो जाएगा मोहन खाता है। मोहन क्या कर रहा है? खाने का काम कर रहा है, कर्ता कारक यही हो जाएगा। ठीक है, शेष वाक्य जो दिया, शीला को रोटी खिलाओ, ये काम करवाया जा रहा, शाम को मत आना, ये सभी जितने हैं ये दोनों जो है कर्म कारक है। बहुत कम बरसात होने के लिए कौन सा एक शब्द प्रयोग किया जाता है? क्या बहुत कम बरसात होने, इसमें जो यूज किया जाएगा तो ये अल्पवृष्टि है। क्या? अल्पवृष्टि। और अन्य शब्द जो दिए गए हैं अतिवृष्टि मतलब होता है वर्षा का अत्यधिक होना, और वर्षा का बिल्कुल ना होना अनावृष्टि होता है। तो बहुत कम वर्षा होना यानी अल्पवृष्टि, कम वर्षा। ठीक है, बहुत वर्षा पूछा जाता तो अतिवृष्टि, और बहुत कम होता तो कम होता तो बिल्कुल नहीं होना होता तो अनावृष्टि होता। ठीक है, एक्सट्रीमली सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कर्तृवाच्य का वाक्य बताइए। कर्तृवाच्य का वाक्य हो जाएगा तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी, पहला ही ऑप्शन राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य भूतकाल का है? चलिए, भूत प्रेत बताइए आप। यदि वह खाता तो मैं नहीं जाता, पहला ऑप्शन ये दिया गया ना, सही है ना, यदि वह जाता तो मैं भी जाता। ठीक, इसमें एक शब्द का वचन है, करेक्ट आंसर ऑप्शन ए संतति, एक वचन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है? बताइए इसमें पुल्लिंग कौन सा नहीं होगा? बनावट, बनावट शब्द जो है स्त्रीलिंग है, और जैसे कि दरवाजे की बनावट अच्छी है, क्या है? अच्छी है, ये स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, निम्नलिखित में से क्या एक संयुक्त क्रिया विशेषण नहीं है? संयुक्त क्रिया विशेषण नहीं है, बताइए कौन सा होगा? या जो विकल्प दिए गए तीनों ही, जैसे प्रतिपल, सांझ सवेरे, कुछ न कुछ, तीनों जो है संयुक्त क्रिया विशेषण ही है, तो नहीं पूछा जा रहा। तो राइट आंसर क्या होगा? कोई भी नहीं, क्योंकि सारे के सारे संयुक्त क्रिया विशेषण ही है, तो एक भी ऑप्शन सही है ही नहीं। चलिए, निम्न में अव्यय है, अव्यय क्या हो जाएगा? तो आह, आह जो है अव्यय है इसमें से। ठीक है, तो ऐसे शब्द जिसमें लिंग, वचन, पुरुष कारक आदि के कारण कोई विकार नहीं होता है तो ये अव्यय कहलाते हैं। जैसे आह हो गया, या फिर हाय हो गया, वाह जैसे बोलते हैं ना, वाह, शाबाश, क्या शाबाश हो गया, हाँ, और किंतु, ये सारे जो वर्ड हैं ये क्या है? अव्यय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कर्ता एक क्रिया समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया में प्रवृत्त होता है तब पहली क्रिया क्या कहलाती है? इसको कहा जाता है पूर्वकालिक क्रिया। निम्नलिखित में से किस वाक्य में सकर्मक क्रिया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें, उसने कार बेच दी। मीठा अमरूद में मीठा विशेषण किस कोटि का है? करेक्ट आंसर है विकल्प बी, गुणवाचक। निम्नलिखित शब्दों में से जो शब्द विशेषण नहीं है उसका उल्लेख कीजिए। ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं अब। यहाँ पे सारे के सारे विशेषण ही दिए गए हैं, तो उपर्युक्त में से कोई नहीं, राइट आंसर हो गया। कोई आ रहा है वाक्य में, कोई किस प्रकार का सर्वनाम है? तो कोई आ रहा वाक्य में ना, कोई ना अनिश्चयवाचक, मतलब कोई निश्चित है ही नहीं, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम, वेरी इजी। निम्नलिखित में से किस वाक्य में सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? बताइए आप लोग अब। मैं कल दिल्ली जा रहा हूं, जब संज्ञा के स्थान पर कोई शब्द प्रयुक्त होता है तो उसको सर्वनाम कहते हैं, जैसे मैं, तू, आप, ये सभी ये हो गया। ठीक है, सर्वनाम के कितने भेद? 6 भेद। कौन कौन से? पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम।
ये 10 टेस्ट जो मैंने करंट पब्लिकेशन का करवाया उसमें बहुत ही डिटेल्स में जितने भी प्रश्न आए हैं ना, अगर उसमें विश्लेषण की ज़रूरत है तो मैंने पूरे विस्तार से उसको करवाया है। लगभग 1 घंटे का टेस्ट उस समय जाता था। अभी तो टेस्ट को की अवधि जो है बहुत कम हो गया है, और उस टेस्ट को आप लोग देख लोगे ना, आपका टॉपिक भी क्लियर हो जाएगा। उस टेस्ट को बिल्कुल देखना ना भूलें आप लोग, उसको देख कर कि इसको स्टार्ट कीजिएगा आप लोग को, मैं ये बता दे रहा हूँ। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है भाववाचक संज्ञा नहीं है? करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ममता, समता, कटुता सारे भाववाचक संज्ञा, नहीं पूछा जा रहा है तो सारे के सारे तो भाववाचक संज्ञा ही है। क्या है? भाववाचक संज्ञा है सारे। ठीक है, तो उपर्युक्त में से कोई नहीं। व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को क्या कहते हैं? बचपन वाला प्रश्न, क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। नेक्स्ट, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। चलिए, प्रोनाउंसिएशन किसका शुद्ध है? दैदीप्यमान, दैदीप्यमान या दैदीप्यमान, कौन सा होगा? सारे के सारे क्या है? गलत है। सही क्या होगा? ये होता है सही दे दीप्यमान, ये जो है रहता तो सही होता, तो शुद्ध वर्तनी वाला कोई है ही नहीं, तो प्रयुक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर होता इस तरह से दे दीप्यमान होता है। ये करेक्ट, ये प्रोनाउंसिएशन भी है और लिखा भी है। एक की वर्तनी शुद्ध है, इसमें से एक ही वर्तनी शुद्ध होगा, कौन सा होगा? तो अक्षौहिणी। ठीक है, ये शुद्ध है। राजमहल नहीं होता है, राजमहल होता है, राजमहल होता है। कोमलांगिनी नहीं होता, कोमलांगी होता है, कोमलांगी होता है, सही। ठीक है, अक्षौहिणी जो है ये सही दिया गया ऑलरेडी, ऑप्शन सी इसलिए सही जवाब हो गया। लेन देन, विरह मिलन, जड़ चेतन आदि शब्द युग्मों के बीच किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा? बताइए आप लोग। ये होगा इस टाइप का, डैश का। ठीक है, जैसे साथ साथ लिखते हैं ना, साथ साथ, क्या हुआ? इस डैश का प्रयोग। इसी तरह यहाँ पर विकल्प भी राइट आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़े। निम्नलिखित में से पार्श्विक ध्वनि कौन सी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ल। जिन ध्वनि के उच्चारण में जिह्वा का अग्रभाग वत्स को स्पर्श करती है और श्वास जिह्वा के दोनों पार्श्व से निकलती है, उसको पार्श्विक ध्वनि कहा जाता है। तो ल जो है इसी तरह निकलता है। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण दंत वर्ण नहीं है? बताइए, दंत कौन सा नहीं होगा? त दांत से ही होता है, ल दांत से ही होता है, द दांत से, सारे के सारे तो दांत से ही हो रहा है, तो नहीं पूछा जा रहा, तो उपयुक्त में से कोई नहीं, सारे तो दांत से ही हो रहे हैं। चलिए नेक्स्ट है, स्वरों की कुल संख्या कितनी है? बचपन वाला प्रश्न, बताइए आप लोग कितने? 11। कौन कौन? अ, ई, उ, री, यहाँ से, और दूसरे पार्ट में मान लीजिए तो 3 हो गए। आ, दीर्घई, जो दीर्घ स्वर होते हैं, आ, दीर्घई, दीर्घऊ। उसके बाद आते हैं जो संयुक्त स्वर, जैसे कि ए हो गया, ए हो गया, और ओ हो गया, अ हो गया। ये कौन सा स्वर होता है? ये सारे जो है संयुक्त स्वर है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला आंचल किस विधा की रचना है? करेक्ट आंसर हो जाएगा उपन्यास है महिला आंचल। ठीक है, और इसके लेखक जो है फणीश्वर नाथ रेणु है। इस उपन्यास के लेखक कौन? फणीश्वर नाथ रेणु। चलिए जीएस का एक क्वेश्चन भी बन गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन है? तो इनका नाम है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। विकल्प सी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल के द्वारा बहुत सारा लिख, चिंतामणि इनका फेमस है, जो मुझे याद आ रहा है लिख देता हूँ। चिंतामणि ये पूछा जा सकता है एग्जाम में। ठीक है, राम कुमार वर्मा की जो है अंजलि, अभिशाप, हाँ अभिशाप है इनका, जौहर हो गया। ये सारे इंपॉर्टेंट बुक के नाम हैं इनके। ठीक है, और हिंदी साहित्य की भूमिका जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा लिखा गया है। और इनका जैसे और भी है, सुर साहित्य हो गया, सुर साहित्य इन्हीं की रचना है। और कौन कौन सी रचना है इनकी? आदिकाल हो गया, नाथ संप्रदाय, ये सारे जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। तो जितने भी कवि या उपन्यासकार का नाम यहाँ पर आ रहा है, आप लोग गूगल करके उनका जितना भी उपन्यास होगा सर्च कर लीजिएगा एक बार, ताकि एक भी प्रश्न छूट ना पाए एग्जाम में। जितना मुझे बताना था, इंपॉर्टेंट था, मैंने लिख भी दिया। निम्नलिखित में से ज्ञान मार्गी शाखा का कवि कौन है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कबीर दास है ज्ञान मार्गी शाखा के कवि। और इनकी वाणी का संग्रह जो है बीजक नाम से प्रसिद्ध है। किस नाम से? बीजक नाम से। बीजक कबीर दास से संबंधित है। क्लियर है, भूलिएगा नहीं ना। जायसी जो है किस धारा के कवि है? तो मलिक मोहम्मद जायसी इनका पूरा नाम है। निर्गुण प्रेम मार्गी भक्ति धारा के सूफी कवि हैं। ठीक है, प्रेम मार्गी, ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। और पद्मावत जायसी की कालजयी रचना है। क्या? पद्मावत इन्हीं की रचना है जायसी की।
चलिए आगे के प्रश्न है, खड़ी बोली के सर्वप्रथम कवि माने जाते हैं। आपको पता होगा ना कौन है, अमीर खुसरो जी हैं, और हिंदी और उर्दू दोनों में ये कविताएं लिखते थे। और जयशंकर प्रसाद जो छायावाद के स्तंभ में गिने जाते हैं, ये छायावाद के कवि थे, छायावादी कवि थे, ठीक है, छायावादी थे। और मैथिली शरण गुप्त जो है ये थे द्विवेदी युग के, द्विवेदी युगीन कवि थे, ठीक है। एक भी प्रश्न छूटने ना चाहिए। आगे दिया गया निर्देश गद्यांश को पढ़ना है। चलिए पढ़ते हैं। ईर्ष्या का काम जलाना है, मगर सबसे पहले वह उसी को जलाती है जिसके हृदय में उसका जन्म होता है। आप भी ऐसे बहुत से लोगों को जानते होंगे जो ईर्ष्या और द्वेष की साकार मूर्ति है, जो बराबर इस फिक्र में लगे रहते हैं कि कहाँ सुनने वाले मिलें कि अपने दिल का गुबार निकालने का मौका मिले। श्रोता मिलते ही उनका ग्रामोफोन बजने लगता है और वे बड़े ही होशियारी के साथ एक एक कांड इस ढंग से सुनाते हैं मानो विश्व कल्याण को छोड़कर उनका और कोई ध्येय नहीं हो। मगर जरा उनके अपने इतिहास को भी देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि जब से उन्होंने इस सुकर्म का आरंभ किया है तब से वे अपने क्षेत्र में आगे बढ़े हैं या पीछे हटे हैं। यह भी कि अगर वे निंदा करने में समय और शक्ति का अपव्यय नहीं करते तो आज उनका स्थान कहाँ होता। इस पर प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 80। ईर्ष्या का काम क्या है? ईर्ष्या का काम अभी क्या बताए थे, काम जलाना है, तो ऑप्शन सी सही जवाब हो गया। गद्यांश में प्रयुक्त ध्येय का अर्थ क्या होगा? तो ध्येय का अर्थ होता है लक्ष्य, ठीक है, टारगेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गद्यांश में ईर्ष्यालु व्यक्तियों की क्या की गई है? ईर्ष्यालु व्यक्तियों की खिल्लियां उड़ाई गई है, मजाक उड़ाई गई है। विकल्प बी सही जवाब हो गया। चलिए भाव युक्त अनुवाद चुनिए। आई वॉज ओवरजॉयड, इसका ट्रांसलेट करने को मोटा मोटी कहा जा रहा है। ये अंग्रेजी है जिसका मुहावरा, ये फ्रेज है जिसका हिंदी में भावायुक्त तो होता है मेरा दिल बाग बाग हो गया। ऑप्शन सी सही जवाब है, ठीक है। आई वॉज ओवरजॉयड मुहावरा है ये। कार्यालयी आदेश सदैव प्रेषित होता है, तो ये जो होता है ना, वरिष्ठ से कनिष्ठ को प्रेषित किया जाता है, बड़े से छोटे की ओर, ठीक है। विकल्प बी सही जवाब होगा इसका। का बरखा जब कृषि सुखाने, तब कहा जाता है जब कोई, क्या बताइए इसका मतलब। का बरखा जब कृषि सुखाने मतलब होता है कि जब कोई उचित कार्य समय पर ना हो, ठीक है, जब कोई उचित कार्य समय पर ना हो। करेक्ट आंसर क्या होगा? पहला ही विकल्प सही हो गया। आगे बढ़ते हैं अब। आंख का अंधा गांठ का पूरा लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा विकल्प बी, मूर्ख धनी होता है। नेक्स्ट, अपने मेरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता का अर्थ क्या होगा? करेक्ट आंसर पहला, स्वयं प्रयत्न करने पर ही काम बनता है। दुल्हीन अंगनिया काहे न धोआई, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ये हो जाएगा रूपातिशयोक्ति अलंकार होगा, विकल्प सी। दीप सा मन जल चुका, इस पंक्ति में वाचक शब्द है, कौन सा होगा? सा होगा, सा वाचक होगा। सारंग लय सारंग चली कई सारंग की ओट, सारंग झीनो पाई के सारंग कई कई चोट, इस पद में कौन सा अलंकार जो है विद्यमान है, ये पूछा जा रहा है। इसमें हो जाएगा यमक अलंकार। यमक अलंकार मतलब जहां एक ही शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार हो, ठीक। अनुप्रास अलंकार क्या है इसमें से? ये हो जाएगा व्यंजन वर्ण की आवृत्ति। छप्पय किस प्रकार का छंद है? छप्पय, छप्पय शब्द जो है विषम संधि, विषम मात्रिक छंद है। आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से करुण रस का स्थायी भाव कौन सा होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका शोक। इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? अशुद्ध वाक्य पूछा जा रहा, हो जाएगा हर एक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गए, ठीक है। ये जो है अशुद्ध वाक्य दिया गया है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य कौन सा होगा? मिश्र, तो जिस वाक्य में साधारण वाक्य के अतिरिक्त उसके अधीन कोई दूसरा अंग वाक्य होगा तो उसको मिश्र वाक्य कहते हैं। ये परिभाषाएं उस 10 टेस्ट में हम लोग देख चुके थे। ये हो जाएगा उसने मान लिया कि उसका दोष है, दोष उसका है। नेक्स्ट, निम्नलिखित वाक्य को सरल वाक्य में परिवर्तित कीजिए। उसने कहा कि मैं विदेशी हूँ, ये हो जाएगा। तो एक मिश्र वाक्य है जिसका सरल वाक्य होता है उसने अपने आप को विदेशी बताया होगा, तो विकल्प बी सही जवाब होगा। कंकर पत्थर में प्रयुक्त समास है, कहते हैं ना कंकर पत्थर चुन के, XYZ जो भी हो, मैं नहीं बोलूँगा यहाँ पर, ये द्वंद्व समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज दरबार में कौन सा समास है? करेक्ट आंसर तत्पुरुष समास। चलिए अगला प्रश्न, यथासंभव में कौन सा समास है? यथासंभव में हो जाएगा अव्ययी भाव समास। यथासंभव, जितना संभव हो, और इस समास का पहला पद प्रधान होता है और अव्यव होता है। आखिरी प्रश्न यहाँ पर, जिसका कोई शत्रु पैदा ही ना हुआ उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं अजात शत्रु कहा जाता है, और जिसका हाथ घुटने तक होगा उसको अजान बाहु कहा जाता है। हाथ कहाँ तक? घुटने तक हाथ,
घुटने तक हाथ होगा। चलिए सारे प्रश्न हम लोगों ने कर लिया। मिलेंगे नेक्स्ट टेस्ट में, तब तक आप लोग इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने साथियों के बीच, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि अगला टेस्ट जब भी अपलोड होगा तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट में। अपना स्कोर भी कमेंट कीजिए, कितने प्रश्न आपसे सही हो गए। बहुत बहुत धन्यवाद।